Cardiac cardiac cycle. Cardiac cycle definition. The we can say one beat of heart is called one cardiac cycle. For example, when one time heart contract and one time relax. The contraction phase is called systole and relaxation phase is called diastole. This is one cardiac cycle. Cardiac cycle has two phases, systolic phase and diastolic phase. Diastolic phase. Systolic phase mean ventricular contraction phase and diastolic phase mean ventricular relaxation phase. When ventricles contract and pump blood in aorta or pulmonary trunk, this phase is called systolic phase. Systole means contraction and diastole means relaxation. When ventricles are filled with blood, this is called diastolic phase. Systolic phase is again divided into two parts. Number A, period of isovolumic isometric contraction. This is first subphase of systolic phase. Systolic phase is divided into two subphases. Period of isometric contraction, and B number is period of ejection. Period of ejection. Period of ejection. Period of ejection is again divided into two parts. Number one, period of rapid ejection. Period of rapid ejection, and number two is period of slow ejection. Period of slow ejection. Okay. Cardiac cycle consists of two phases, systolic phase and diastolic phase. Systolic phase is divided into two main subphases, period of isometric contraction and period of ejection. Period of ejection is again divided into two subcomponents, period of rapid ejection and period of slow ejection. Okay. Diastolic phase is divided into four subphases. Number one, this is similarly this period of isometric relaxation. Here is relaxation because diastole. For systole it is contraction. Period of isometric relaxation, and second is period of rapid filling of ventricle. Rapid filling of ventricle. Third phase is diastasis. Diastasis. And fourth one is called atrial systole or atrial kick. Atrial kick. These are main headings of a cardiac cycle. Cardiac cycle, when one time heart contract and relax, this is called one cardiac cycle. One cardiac cycle takes about 0.8 seconds. In 0.8 second our one heart cycle, we can say cardiac beat or cardiac cycle completes, and it takes about 0.3 second in systolic phase and 0.5 second in diastolic phase. I have explained coronary blood supply. Coronary blood supply is mostly present in diastolic phase. When ventricles are relaxing, during this condition, ventricular muscles get their oxygen and nutrients during diastole, and diastole has 0.5 second duration, and systolic phase has about 0.3 second duration. No problem. No.
Okay, how the process of cardiac cycle occurs according to valvular activity. And first of all, diastolic phase. Diastole means relaxation of ventricle. And during this phase, blood is coming from superior vena cava and inferior vena cava into right atrium, and blood is filled here. But now our ventricles are not in relaxing condition. The mitral valve and tricuspid valves are closed. No blood is coming inside, no blood is exiting. This phase is called period of isovolumic isometric relaxation. Okay, first phase of diastole. Diastole has two phases: isovolumic isometric relaxation. No blood is entering, no blood is exiting. The volume and tone of ventricular muscles is equal, it is not changing. This is called isovolumic isometric relaxation. During this phase, tricuspid and mitral valves are also closed, and aortic and pulmonary valves are also closed. No blood is entering, no blood is exiting. Second is called period of rapid filling of ventricle. During this phase, mitral and tricuspid valves open and blood is rushing from atria to ventricle. This phase is called period of rapid filling of ventricle. It is divided into two parts: period of relaxation, rapid filling and slow filling. Rapid filling occurs in first one third of rapid filling phase. Of filling phase, and 2/3 is स्लो फिलिंग. इसमें क्या होता है कि जिस वक्त वेंट्रिकल फेल हो रहे होते हैं, ब्लड एटीएम से वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो रहा है, तो जिस वक्त वाल्व क्लोज है, ना ब्लड एग्जिट हो रहा है ना एंटर हो रहा है, तो उस फेज वो कहते हैं आइसोवॉल्यूमिक आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन. यानी ना ब्लड एंटर हो रहा है ना एग्जिट हो रहा है. जैसे ब्लड एंटर होना स्टार्ट होगा, उस वक्त ये दोनों वाल्व ओपन होने चाहिए, मिडल और ट्राइकस्पिड, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में. जैसे ये वाल्व ओपन होंगे, ब्लड इनके अंदर फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको कहते हैं पीरियड ऑफ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल. इसके दो कंपोनेंट है, स्लो फिलिंग एंड रैपिड फिलिंग. जैसे वाल्व ओपन होगा, ऊपर बहुत हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से यकदम ब्लड अंदर आएगा, तो वो रैपिड फिलिंग होगी. और ये तकरीबन 1/3 ऑफ टाइम जो लगेगा ना इसका, उसमें रैपिड फिलिंग हो जाएगी, और 70% ब्लड जो है वो इसमें फिल हो जाएगा. और उसके बाद आता है स्लो फिलिंग. स्लो फिलिंग में जो नेक्स्ट ब्लड है वो एंटर हो जाएगी. सही है. इसके चार कंपोनेंट है, मैंने पहले बताया. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोवॉल्यूमिक आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, उसके बाद पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग, उसके बाद डायस्टेसिस फेज, और लास्ट में क्या होता है, एट्रियल किक होती है. जो ब्लड एट्रियम के अंदर बाकी बच जाता है, एट्रिया उसको पुश करके इन वाल्व को क्लोज कर देता है. सिस्टोलिक फेज के दो पार्ट हैं. सिस्टोलिक, इसमें नंबर 1 है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन. उसमें मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व अभी तक ओपन नहीं हुए. ओके, व्हेन एट्रियल एंड aortic valve and pulmonary valves, these are not yet opened and no blood is entering and no blood is exiting. This is called period of isovolumic isometric contraction. उसके बाद जैसे aortic और pulmonary valve open होंगे, blood जो exit होना start हो जाएगा, उसको कहते हैं period of ejection. See, अभी हार्ट के वाल्व्स, वाल्व्स 4 वाल्व्स हैं. मिट्रल वाल्व तो ट्राइकस्पिड, number 3 aortic, number 4 pulmonary. Function of valve: these valves prevent backflow of blood. बैकफ्लो ऑफ ब्लड, इनका एक ही मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को बैक साइड पे नहीं जाने देना. जिस तरह ट्राइकस्पिड वाल्व है या मिट्रल वाल्व है, तो ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में एंटर नहीं हो सकता नॉर्मल कंडीशन में. ठीक है.
Mitral valve. Mitral valve has two cusps. It is also called bicuspid valve. And below the cusps of mitral valve are present cardi tendini. Cardi tendini. These cardi tendini are attached with papillary muscles. Papillary muscles are attached with ventricular walls. Ventricle walls. This is the structure of mitral valve. Mitral valve. Mitral valve is located between left atrium and left ventricle. It has two cusps, and these are cardi tendini, papillary muscle. When ventricle contract, these cardi tendini and papillary muscle prevent the regurgitation of blood and prevent the opening of mitral valve so that blood cannot enter from ventricle to atria. Next, second valve is called tricuspid valve. Why it is called tricuspid? Because here are present three cusps. Tricuspid. It is present between right atrium and right ventricle. Next two valves are semilunar valve. Semilunar valves are aortic valve and pulmonary valve. These valves don't have any cardi tendini or papillary muscle. Semilunar valve. These are present in the base of aorta and pulmonary trunk. अभी कार्डियक साइकिल के लिहाज से ये वाल्व कैसे ओपन होते हैं और कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस एरिया में कौन सा वाल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, इसमें माइट्रल वाल्व, और इस एरिया में एओर्टिक वाल्व और इधर पल्मोनरी वाल्व। तो इसको इस तरह ड्रा करते हैं। ये फाइब्रस एनुलस है, कार्टिलेजिनस डिस्क है जो कि हार्ट का स्केलेटन होता है बिटवीन टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल। इस एरिया में फाइब्रस एनुलस होती है। इसके अंदर ये चारों वाल्व है। लेफ्ट साइड पे माइट्रल वाल्व, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व। इनका डायमीटर होता है तकरीबन 4 to 5 सेंटीमीटर। माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना, ट्राइकस्पिड 3 का इनका एवरेज डायमीटर होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर ये दो छोटे वाल्व हैं, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। इनका डायमीटर होता है तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर। 3 to 4 सेंटीमीटर दोनों का। अभी क्या होना है कि जिस वक्त हार्ट के जो साइक्लिक प्रोसेस चलना है, जिस वक्त वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों वाल्व क्लोज होते हैं और ब्लड जो है उस वक्त यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। और जिस वक्त वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना है, उस वक्त ये दोनों वाल्व क्लोज होते हैं और मिट्रल और ट्राइकस्पिड ओपन होते हैं और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा होता है और ये फिलिंग प्रोसेस होता है। और हार्ट की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जिस वक्त कोई भी वाल्व क्लोज होता है साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होती है। जैसे वाल्व ओपन होता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ये बिल्कुल इस तरह प्रोसेस, जैसे ये वाल्व ओपन होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे वाल्व क्लोज होता है तो कस्प उसके स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड है जो वेंट्रिकल चैम्बर के साथ होता है, जब वो वाल के साथ वेंट्रिकल की वाल के साथ स्ट्राइक करता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, वो साउंड सुनी जाती है। और हार्ट के 4 लोकेशन पे साउंड सुनी जाती है क्योंकि 4 इसके वाल्व्स हैं। अभी जो माइट्रल वाल्व है, इसकी साउंड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के एपिकल रीजन पे सुनी जाती है क्योंकि ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और उसका मेन जो प्रेशर है ना वो इस एरिया में होगा। तो इस स्टेथोस्कोप यहाँ पे रखते हैं। और ट्राइकस्पिड वाल्व की लोकेशन ये है, लेकिन इसकी साउंड इस पॉइंट पे सुनते हैं। जो एओर्टिक वाल्व है, एओर्टिक वाल्व की लोकेशन ये है, लेकिन इसकी साउंड जो है ऊपर सुनते हैं क्योंकि ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करता हुआ एओर्टा के यानी असेंडिंग एओर्टा और आर्क की तरफ जा रहा होता है। तो जिस साइड पे ब्लड जा रहा होता है साउंड उस साइड पे सुनेंगे। और पल्मोनरी वाल्व जो है उसकी साउंड आएगी यहाँ से निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक और इसकी साउंड वाल्व तो इस लोकेशन पे लेकिन साउंड यहाँ पे सुनेंगे।
और बॉडी के ऊपर फॉर एग्जांपल स्टर्नम, स्टर्नम और इसके पास साथ ये पैरास्टर्नल लाइन है और यहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइन। हार्ट जो है उसकी लोकेशन यहाँ पे है तकरीबन रेट्रोस्टर्नल और लेफ्ट साइड पे। जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम होते हैं ये तकरीबन इनका कुछ मार्जिन जो है स्टर्नम के बैक साइड पे होता है और कुछ जो है वो स्टर्नम के लेफ्ट साइड पे होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो तकरीबन मैक्सिमम इस एरिया तक आता है मिड क्लेविकुलर लाइन पे। तो माइट्रल वाल्व की साउंड जो है उसका एनाटॉमिकल पोजीशन 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ट्राइकस्पिड वाल्व की 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन और बिल्कुल जिफोइड प्रोसेस के साथ। और एओर्टिक वाल्व की 2nd इंटरकोस्टल स्पेस राइट पैरास्टर्नल लाइन। एओर्टा होता तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है लेकिन क्या कर रहा है ये इस तरह कर्व करके राइट साइड पे जाता है, राइट साइड पे जाता है फिर आर्क बनाता है। तो इसकी साउंड क्या निकलता लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर साउंड इसकी स्टर्नम के राइट साइड पे सुनेगी। और जो पल्मोनरी वाल्व है उसकी साउंड लेफ्ट साइड पे सुनेगी क्योंकि पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल से निकल के टर्न करता हुआ सीधा लेफ्ट साइड पे जाना शुरू होता है। ओके अभी मैं ड्रा करता हूँ। ओके फॉर एग्जांपल sternum, xiphoid process and clavicle bone, first rib, second rib, third rib, fourth rib, fifth rib, sixth rib, seventh. 7 ribs are direct ribs. These attach directly with sternum. And this is left side of chest cavity. Left side of chest cavity. And about here is present superior vena cava and some part of right atrium, then inferior vena cava. Okay, this is right border of heart. And here is present pulmonary veins. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, both fifth intercostal space left mid clavicular line जहाँ पे आएगी mitral valve की sound, and between them is present interventricular septum. The heart location of heart is almost like this because okay, and here is present sternum, and at the level of 4th intercostal space left parasternal line here is present tricuspid valve, mitral valve. Aorta is going to right side and sound of aorta is listened at 2nd intercostal space right parasternal line, and pulmonary sound pulmonary trunk is going here, and pulmonary sound is listened at 2nd intercostal space left parasternal line. These are 4 locations of valvular heart sound. When valves close, these produce sounds, and sounds are S1, S2. These are more dominant, S1 and S2. But sometimes S3 and S4 are also produced. S1 is produced due to closure of tricuspid and mitral valve. It is more prominent at mitral area because here is more pressure. S1 closure of tricuspid and mitral valve. जैसे ट्राइकस्पिड और mitral valve क्लोज होंगे उस वक्त जो है S1 प्रोड्यूस होगी। S2 जैसे एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व जैसे क्लोज होंगे उस वक्त S2 प्रोड्यूस होगी।
नॉर्मल पर्सन में, अडल्ट पर्सन के अंदर तकरीबन ये दो साउंड ही आती हैं। एक होती है लब 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 लब, यानी लब जो है वो S1 होती है, और ये दोनों जैसे क्लोज होते हैं तो ये प्रोसेस तकरीबन सिमुल्टेनियस होता है, एकदम ही क्लोज होते हैं, तो साउंड इनकी इकट्ठी हो जाती है, मिल जाती है। और जो इसको कहते हैं जो S2 है इसको कहते हैं A2 P2, यानी सेकंड साउंड ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनिक, और ये भी दोनों मिक्स हो जाएंगे, उसके रिजल्ट में एक कॉम्बिनेशन में S2 साउंड आएगी। और मिट्रल और ट्राइकस्पिड की S1 होगी, ये दोनों मिक्स होके वन साउंड बनाएंगे। और इसको ड्रा इस तरह करना है कि ये क्या कहते हैं हाई पिच वाली साउंड होगी S1, और उसके बाद में गैप आएगा, फिर छोटी सी साउंड होगी S2। इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड एरिया पे या मिडल एरिया पे सुनेंगे तो S1 का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा आएगा, लेकिन जैसे पल्मोनरी या एओर्टिक एरिया पे जाके सुनेंगे तो वहां पे S2 का एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा, क्योंकि वो उनका एग्जैक्ट लोकेशन वाला एनाटॉमिकल एरिया है, वहां पे उनकी साउंड ज्यादा इंटेंसिटी में आएगी। फॉर एग्जांपल इस एरिया पे सुन रहे हैं तो साउंड आएगी S1 S2, पहले वाली बड़ी, सेकंड वाली शॉर्ट। लेकिन इस एरिया पे क्या होगी, पहले वाली नॉर्मली आएगी, लेकिन सेकंड जो है वो लाउड हो जाएगी, क्योंकि वो उनका एनाटॉमिकल पोजीशन। S3 and S4, S3 is produced due to volume overload. Volume overload. For example, during pregnancy, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है हमारा 5 लीटर, 5 लीटर अडल्ट पर्सन के अंदर नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर, लेकिन प्रेगनेंसी कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम तकरीबन 7 to 7.5 लीटर तक चला जाएगा, यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से थर्ड S3 साउंड प्रोड्यूस होगी। और इसके बाद क्या कहते हैं, जो S3 कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? टीनेजर, ये किसी भी एरिया पे सुनो तो इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुनते हैं ना, ऐसे होगा S1 S2 और फिर S3 आएगा, तीन साउंड एक साथ आएंगे, मतलब चलो लाइट साउंड होगी वो। हाँ, किसी भी एरिया पे सुनी जा सकती है। इंटेंसिटी कितना दी हुई है बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद टीन एज में फॉर एग्जांपल जो एज होती है तकरीबन 17-18 ईयर, ऐसे इस एज में भी S3 सुनी जा सकती है, क्योंकि पर्सन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में S3 सुनी जा सकती है। लेकिन 20 ईयर के बाद तकरीबन 35-34 तक दो ही साउंडें आती हैं एडल्ट पर्सन की। S4 it is produced due to pressure overload. pressure overload होता है जिस वक्त फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल की वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, तो एट्रिया की जो लास्ट में किक होती है सिस्टोल में, तो एट्रिया फोर्स लगाता है, तो अगर वेंट्रिकल स्टिफ हो तो ऐसी कंडीशन में S4 प्रोड्यूस होगी। S3 is produced due to volume overload, S4 is produced due to pressure overload. क्लियर? इसको मैं रिवाइज करता हूँ। ये एनाटॉमी का लोकेशन है, माइट्रल एरिया की, माइट्रल वाल्व की लोकेशन जो है तकरीबन होती है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, तकरीबन मिड क्लेविकुलर लाइन और पैरास्टर्नल लाइन के बीच में यहाँ पे लोकेशन होती है एनाटॉमी का जो लोकेशन है। लेकिन इसकी साउंड जो है वहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन के तकरीबन 1 to 1.5 इंच मिड साइड पे सुनते हैं। अब हार्ट का साइज बड़ा होने के रिजल्ट में फिर आउटसाइड भी जा सकती है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के अंदर ये इसकी लोकेशन। ट्राइकस्पिड एरिया की साउंड जो है लोकेशन ऊपर है, लेकिन साउंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन पे जिफोर्ड प्रोसेस के बिल्कुल तकरीबन साथ होता है, वहाँ पे सुनते हैं। एओर्टिक वाल्व की साउंड जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड ऑफ स्टर्नम, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। पल्मोनरी वाल्व की साउंड जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन, ये चार लोकेशन। जब भी इस एरिया पे स्टेथोस्कोप रखेंगे तो साउंड आएगी S1 S2, एक बड़ी आएगी S1 लाउड लोब लाउड लोब, तो ये जो लोब आ रही है वो इन दोनों के मिक्सचर से आ रही है S1, और जो सेकंड वाली शॉर्ट आ रही है वो उन वाल्व की साउंड आ रही है। ट्राइकस्पिड और मिट्रल की साउंड मिक्स हो जाती है और वो S1 प्रोड्यूस होती है हाई एम्पलीट्यूड में, और क्या कहते हैं पल्मोनरी और एओर्टिक की मिक्स हो जाती है और वो S2 बनती है।
अब S3 जो है वो इसके बाद आएगी। अगर किसी भी एरिया पे सुनते हैं तो S1 S2 S3 और S4 अगर प्रोड्यूस हो तो वो बिल्कुल प्रोड्यूस होती है और उसके बाद फिर S1 आ जाती है, यानी इसको कहते हैं प्री S1 S4 को, यानी S1 प्रोड्यूस होने से बिल्कुल पहले फिर होते हैं। अगर S3 हो तो ऐसे प्रोड्यूस होगी लोप लोप लोप, आगे एक साउंड आएगी लोप लोप लोप। और जो S4 होगी ये फिर चारों साउंडें आएंगी S1 S1 S2 S3 S4 और उसके साथ ही फिर S1 अटैच हो जाएगी। गैलप साउंड इसको कहते हैं। गैलप जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जब मरमर होते हैं ना उसी कंडीशन में प्रोड्यूस है। ये नॉर्मल क्या कहते हैं नॉर्मली हो सकती हैं फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर। तकरीबन 35 ईयर से पहले जो है S3 नॉर्मल होती है, 35 एज से पहले नॉर्मल हो सकती है और कोई प्रॉब्लम नहीं। तकरीबन 45 एज के बाद अगर S4 प्रोड्यूस होती है ना तो वो नॉर्मल है, क्योंकि एज जैसे बढ़ती जाती है वेंट्रिकल स्टिफ हो जाते हैं, उस वक्त ये प्रोड्यूस होते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर 45 से पहले ये प्रोड्यूस होती है तो ये S4 अब नॉर्मल है। अगर 35 के बाद S3 प्रोड्यूस होती है तो वो मे बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है। समझ